Hello my dear students, a precious good morning to all of you. Myself Anurag Kumar Dubey, I am a chemistry teacher from Silver Sin Children Academy. In last lecture we discussed about resonance, formal charge and Lewis structure. Okay, today we are going to start a new topic, that is most important topic, valence shell electron pair repulsion theory. Okay, valence shell electron pair repulsion theory. In short form we can say VSEPR theory. Okay, V means valence, S means shell, E means electron, P means pair and R means repulsion theory. Vesper theory. In short form we can say Vesper theory, valence shell electron pair repulsion theory. First question arises that why we do need to study valence shell electron pair repulsion theory. Okay, we can make structure of any molecules by using Lewis concept, but we cannot find out shape of molecules. Okay, it means this is suppose that for example H2O molecule. So what is the Lewis structure of H2O molecules? You can see oxygen is a central atom and hydrogen is a surrounding atom. Oxygen is a central atom and hydrogen present around the oxygen. We know very well atomic number of oxygen is 26 and hydrogen atomic number is 1 and electronic configuration is 1. Valence shell, how many electrons present in valence shell of oxygen? 6 electrons. Okay, so we will represent by dot symbol and hydrogen 1 electron. Okay, hydrogen required only 1 electron to achieve structure like as a helium. Okay, so hydrogen share only 1 electron with oxygen and oxygen required 2 electron to complete their octet. So oxygen will share 1 electron with oxygen and 1 electron with other hydrogen, 1 electron with this hydrogen and 1 electron with other hydrogen. Okay, this is the Lewis structure of H2O molecule. What is the bonding structure? You know, you can see this is the bond pair electron. Bond pair electron. What is the bond pair electron? Such type of electron which is participate in the formation of bond, that is bond pair electron. What is the lone pair electron? Such type of electrons which cannot participate in the formation of bond, that is the lone pair electron. It means bond is mainly two types. First bond pair and second lone pair. Okay, this is the bond pair or this is the lone pair. So these electrons are lone pair electrons. पेयर इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहेंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और पेयर इलेक्ट्रॉन को ही हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहेंगे. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर? ओके, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, उसके बाद बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द बॉन्ड पेयर. इट मींस सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन which is participate in the formation of bond, that is bond pair, or such type of electrons which not participate in the formation of bond, that is lone pair electrons. Okay, so this is the structure of Lewis structure of H2O molecule. So what is the bonding structure? Oxygen, one shared pair electron form one covalent bond, one shared pair. This is the bond pair electrons. Okay, this is the bond pair electron and one bond has 2 electrons, or this is the lone pair electron. Okay, clear? This is the structure of H2O, this is the Lewis structure of H2O. But what is the shape of this molecule? Yeah, what is the shape of H2O molecule? है ना? तो we cannot find out shape of the molecule. Only we can make structure of molecule by Lewis concept. It means we cannot find out shape of molecule by the Lewis concept.
if we cannot find out the shape of molecules, this is limitation of Lewis concept. It means you can say कि Lewis concept is unable to explain shape of molecules. Okay, Lewis concept is unable to explain shape of molecules. This is the limitation of Lewis concept. Okay, to explain shape of molecules, we will study this concept, valence shell electron pair repulsion theory. Okay, तो Lewis concept unable to explain shape of molecule. Okay, Lewis concept is unable to explain shape of molecules. Okay, तो for shape of molecules we will study this topic Vesper theory. Two scientists, Sidgwick and Powell in 1940, okay, based on repulsive instructions of electron pair in valence shell of the atoms. Okay, तो valence shell electron pair repulsion theory was proposed by Sidgwick and Powell in 1940. Okay, which is based on repulsive interactions of electron pair in valence shell of the atoms. Okay, and valence shell electron pair repulsion theory was further developed by Nahum and Gillespie. In 1957. Okay, मतलब बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी प्रपोज्ड बाय Sidgwick and Powell in 1914. Valence electron pair repulsion theory based on repulsive instructions of electron pair in valence shell of the atoms. Okay, and this theory further developed by Nahum and Gillespie in 1957. Okay, factors है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बेस्ड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स. फर्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन वैलेंस सेल. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन वैलेंस सेल of the central atom of molecule. ओके, किस पर डिपेंड करता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी और वेस्पर थ्योरी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन बैलेंस सेल of the central atom of molecule. Okay, suppose that in H2O molecule, how many electron pair present on central atom? तो वेस्पर थ्योरी फर्स्ट फैक्टर किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. दिस इज द बॉन्ड पेयर और दिस इज द लोन पेयर. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन बैलेंस सेल ऑफ द सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल. ओके, सेकेंड फैक्टर्स क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. एंड थर्ड फैक्टर इज
number of lone pair electron. Okay, shape of molecules depends on following factors. First factor is number of electron pair present in valence shell of the central atom in molecule, and second number of bond pair electron and number of lone pair electron. Okay, this is the factor जिस पर यह वह फैक्टर है जिस पर मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करता है. किस पर डिपेंड करता है? पहला किस पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन बैलेंस सेल ऑफ द सेंट्रल एटम. ओके, सेकंड किस पर? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कि हाउ मेनी बॉन्ड्स प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और कितने नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है किस पर? सेंट्रल एटम पर. ओके, इट मींस यू कैन से शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन सेंट्रल एटम एंड आल्सो डिपेंड ऑन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट टॉपिक इज postulates. Postulates of valence shell electron pair repulsion theory. Okay, valence shell electron pair repulsion theory है ना. postulates of Vesper theory. First, the order of repulsive force acting between different electron pair is, okay, the order of repulsive force active between different electron pairs. Okay, we know very well electron pair is mainly two type. First bond pair and second lone pair. Okay, तो मैक्सिमम रिपल्सन बिटवीन पेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें होगा? लोन पेयर maximum repulsion present between lone pair. After that lone pair bond pair. Okay, and less repulsion between bond pair. Okay, in short form इसको क्या लिख सकते हैं हम? लोन पेयर मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लोन पेयर. आफ्टर दैट उससे कम किस में होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर. ओके, एंड सबसे कम किस में होगा? बॉन्ड पेयर. ओके, ये क्या है हमारा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन पेयर इलेक्ट्रॉन. तो मैक्सिमम रिपल्सन किसमें होगा? लोन पेयर पे, उसमें कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन किसमें होगा? बॉन्ड पेयर में. ओके, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न एवरी टाइम. हमेशा आपको याद होना चाहिए मैक्सिमम रिपल्सन किसमें होता है? लोन पेयर, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में. ओके, दिस इज द फर्स्ट postulates. Second postulates, the molecules will have regular geometry if all the orbital of central atom contain bond pair electron only. ओके, किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है, जो शेप है,
वह रेगुलर कब होगा, रेगुलर और इरेगुलर, एक नियमित होता है और एक अनियमित। रेगुलर ज्योमेट्री कब होगी किसी भी मॉलिक्यूल्स की, जब सेंट्रल एटम के सभी ऑर्बिटल में केवल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और वी नो वेरी वेल, हमको अच्छे से पता है कि जो रिपल्सन फोर्स का जो ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा किसमें, लोन पेयर में, उससे कम लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और सबसे कम किसमें है, बॉन्ड पेयर में। ओके, तो सबसे मिनिमम रिपल्सन किसमें होता है, बॉन्ड पेयर में, है ना। द मॉलिक्यूल्स विल हैव regular geometry or regular shape if all the orbitals of central atom contain bond pair electrons only. If central atom contains only bond pair electrons, तो their repulsion is minimum, और if repulsion is minimum, so shape will be regular. shape हमारा क्या होगा, regular होगा। okay, sorry, third postulates, the molecules will have irregular geometry if one or more orbital contain lone pair electron. Okay, the molecules will have regular geometry if central atom, या कहेंगे if one or more orbital of central atom contain lone pair electron. okay, suppose that, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था H2O मॉलिक्यूल, शेप मैंने बनाया था ऐसे। ओके, अब इसमें देखिए क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर। इट मींस कि इन H2O मॉलिक्यूल्स लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट है। और वी नो वेरी वेल, लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में। देखिए ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अब यहां पे देखिए इसमें लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, बोथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन H2O molecules. It means there are repulsion is maximum in comparison bond pair. If there is a lone pair and bond pair, both are present. अगर दोनों present हैं तो shape of molecule will be irregular. तो shape of molecule क्या होगा, irregular होगा। okay, तो 3 postulates है, इसी को हमें माइंड में रखना है। कौन कौन सा, एक रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सेकेंड if central atom of the molecules contain only bond pair, so shape will be regular. If central atom of molecules contain lone pair and bond pair electron, then shape will be irregular. okay, next topic, shape of molecules containing bond pair electron only. okay, first of all we will discuss shape of such type molecules which contain only bond pair electrons. okay, first say BeCl2 molecules. okay, or you can say AB2 type molecule. A, what is the A? A is the central atom, and B is the attached atom to the central atom. तो B is the central atom, Be, beryllium chloride.
So Be central atom and Cl present around the central atom. Okay, and number of electrons present in valence shell of chlorine 7. First of all we will make Lewis structure, and beryllium atomic number 4 electronic configuration 2. Okay, so 2 electrons. Okay, we know very well only valence electron participate in the formation of bond. Okay, so 7 electrons, 7 1 8 and 7 1 8 beryllium. Okay, this is the Lewis structure. This is the Lewis structure. देखिए शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली डिपेंड्स ऑन सेंट्रल एटम, नॉट अटैच्ड एटम. अटैच्ड एटम पर कभी नहीं. आप कहेंगे सर यहाँ पर भी तो देखिए लोन पे इलेक्ट्रॉन है, इसका हमको नहीं देखना. हमको क्या देखना है कि सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्ड पे और कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन है. तो हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, बैलेंस ऑफ शेल ऑफ बेरिलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन. और जो क्या कर रहा है वह बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, 2 क्लोरीन के साथ. कैसे, अपने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करके. और इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करके ये जब शेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ये कैसे हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. ये सभी क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर, देयर इज 2 बॉन्ड पेयर. केवल 2 बॉन्ड पेयर हैं और देयर इज नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. केवल 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, Be बॉन्ड Cl एंड बॉन्ड Cl, शेयर्ड पेयर्ड, या इसी को बोलते हैं बॉन्ड पेयर. और 2 बॉन्ड या 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या फॉर्म करते हैं, 1 कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6. ओके, तो देयर इज ओनली 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम्स. इफ देयर इज ओनली 2 बॉन्ड पेयर्स, अगर वहां पे केवल 2 बॉन्ड पेयर है, अगर इफ मॉलिक्यूल इज AB2 टाइप, अगर AB2 टाइप का मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, केवल 2 बॉन्ड पेयर है ना. तो शेप कैसा होगा इनका, शेप ऑलवेज इनका लीनियर होगा, है ना. इफ देयर इज ओनली 2 बॉन्ड पेयर एंड नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो शेप ऑलवेज विल बी लीनियर. एंड बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री. ओके, अदर एग्जांपल आप ले सकते हैं BeF2, BeH2, ZnCl2, etc. These are example of AB2 molecules, and these molecules also contain 180 bond angle and structure linear. उनका भी स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर होगा, एंड बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा. ओके, तो ये मॉलिक्यूल्स AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, फॉर एग्जांपल से BCl3 और BF3, है ना. B means A and B3 means Cl3. Okay, in AB3 molecules, if molecule is AB3 type, so structure will be trigonal planar होगा. ओके, कैसे, चलिए इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर. लुईस स्ट्रक्चर, B सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3. ओके, 2 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस शेल ऑफ बोरान. एंड क्लोरीन इज द अटैच्ड एटम. तो हाउ मेनी क्लोरीन्स, 3, Cl एंड Cl. एंड इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस शेल इज 7, है ना, 7. मैंने बताया जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स है ओनली डिपेंड ऑन सेंट्रल एटम. ओके, और सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं, उसी के द्वारा उस मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्लियर होगा. ओके, तो 7 1 8 एंड 7
8. ओके, क्लियर। अब देखिए ए भी क्या होगा। अब देखिए सेंट्रल एटम इज बोरान एंड बैलेंस शेल ऑफ बोरान इज 3 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन विथ क्लोरीन एटम। ओके, इट मीन्स अब जब वो बॉन्ड बना लेंगे तो ये सभी हमारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर। ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर, और ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर। इट मीन्स देयर इज 3 बॉन्ड पेयर एंड नो लोन पे इलेक्ट्रॉन, और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, बी बॉन्ड Cl एंड बॉन्ड Cl एंड बॉन्ड Cl। तो शेप कैसा आएगा इसका, है ना, ऑल 3 B बॉन्ड Cl। कितने B बॉन्ड Cl हैं, 1 2 3। ऑल 3 बॉन्ड्स B बॉन्ड, या कह सकते हैं ऑल 3 B बॉन्ड Cl प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। वो सभी सेम प्लेन में है, सभी क्या है, सेम प्लेन में है। तो इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो सबका, चाहे ऐसे ले लें चाहे ऐसे ले लें, या इधर से इधर से, सबका बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का। एंड स्ट्रक्चर कैसा होगा इनका, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, तो इफ molecules contain only 3 bond pairs, not any lone pair electrons, so bond angle will be 120 degree and structure or shape of molecules will trigonal planar. Okay, other example is BF3 and AlCl3. तो BF3 AlCl3 these molecules also contain shape like as a trigonal planar and bond angle 120 डिग्री। ओके, बना करके इसको आप चेक करिएगा। मैं एक एक एग्जांपल सबका आपको बता रहा हूं। ये था हमारा AB3 टाइप मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। For example, CH4। तो सेंट्रल एटम इज कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 एंड हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। ओके, तो कार्बन इज द सेंट्रल एटम एंड नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4। तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन, how many hydrogen, 4 hydrogen present around the carbon and contain 1 electron in their valence shell. Hydrogen required only 1 electron to complete doublet like as a helium. So hydrogen share 1 electron with carbon. Okay, and carbon share 1 electron with each hydrogen. Okay, अब यू कैन सी, आप देख सकते हैं इन सेंट्रल एटम, या कह सकते सेंट्रल एटम पर, ऑन सेंट्रल एटम ओनली बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स, केवल क्या है, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स, नॉट एनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स, देखिए बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर्स। ओके, मतलब देयर इज अ 4 बॉन्ड पेयर्स एंड नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, बॉन्ड पेयर। तो रिपल्सन कैसे होगा, बॉन्ड पेयर, ये सभी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और वी नो वेरी वेल, हमको पता है कि लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन उससे थोड़ा सा कम होता है, और सबसे कम रिपल्सन किसमें होगा, बॉन्ड पेयर में। इट मीन्स
देयर इज अ लेस रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर। थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, थोड़ा थोड़ा रिपेल करेंगे। तो जब थोड़ा थोड़ा रिपेल करेंगे तो स्ट्रक्चर ऐसे न रह करके ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये शेप ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे H थोड़ा सा ये इसको रिपेल करेगा तो ऐसा कंडीशन आ जाएगा, ये थोड़ा सा इसको रिपेल करेगा तो कंडीशन थोड़ा सा ऐसे, ये थोड़ा सा इसको रिपेल करेगा तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हमारा, ये शेप ऑब्टेन होगा, ठीक है, मतलब शेप कैसा होगा हमारा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इफ मॉलिक्यूल इज a AB4 टाइप, it means there is a only 4 bond pair electrons, या there is only bond pair electrons, or there is only 4 bond pair electrons and no lone pair electron. So structure will be tetrahedral and bond angle 109 degree 28 minute, 109 degree 9 degree 28 minute. Okay, other examples, see, other example of AB4 type molecules is CCl4, NH4 plus, SiH4 and SiCl4 etc, है ना। These are example of AB4 type molecules, और these molecules contain structure like as a tetrahedral and bond angle 109 degree 28 minute. Okay, other shape, AB5 type of molecules like as a PCl5, okay, तो P is the central atom, atomic number 15285, okay, so central atom P and number of valence electron Cl, number of valence electron is 5 electrons, and 5 Cl present around the phosphorus, 1 2 3 4 and 5, and number of valence electron in Cl 7 2 to 4 to 6 1 7 2 to 4 to 6 1 7 2 to 4 to 6 1 7 and 2 to 4 to 6 1 7. Okay, first of all chlorines share 1 electron with phosphorus and complete their octet. Okay, है ना। आफ्टर दैट phosphorus atom share 1 electron with each chlorine. We know very well covalent formed by equal sharing of electron between atoms. Okay, तो शेप कैसा बनेगा इसका, शेप ऐसे बनेगा, Cl Cl and Cl and Cl and Cl, है ना। You can see there is 5 bond pair electrons, no lone pair electrons. तो रिपल्सन किसके किसके बिटवीन होगा, बॉन्ड पेयर 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 बॉन्ड पेयर। आफ्टर रिपल्सन रिपल्सन के बाद जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड होगा इसका, वह स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा आफ्टर रिपल्सन। क्योंकि अभी तो शेप ऐसा है, हमको शेप पता नहीं है, लेकिन वी नो वेरी वेल, हमको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बेस्पर थ्योरी। बेस्पर थ्योरी में क्या होता है, जो पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्सन फोर्स एक्ट करता है। सबसे ज्यादा रिपल्सन किस पे होता है, लोन पेयर में उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उससे कम बॉन्ड पेयर, लेकिन कुछ ना कुछ तो रिपल्सन होगा ही। तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, इसको, तो रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर 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 बॉन्ड पेयर, तो इसका शेप बदल जाएगा। क्यों, आफ्टर रिपल्सन बिटवीन
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा आफ्टर रिपल्सन, ऐसा Cl रिपल्सन होने के बाद जो इसका शेप आएगा वह इस तरह का आएगा, Cl एंड Cl। ओके, इट मीन्स ऑल p बॉन्ड Cl, ये कितने हैं, ऑल 5 p बॉन्ड Cl कितने हैं, p बॉन्ड Cl 1, p बॉन्ड Cl 2, 3, 4, 5। तो ऑल 5 p बॉन्ड Cl आर नॉट इक्वल, सभी सेम नहीं है। ओके, 3 बॉन्ड प्रेजेंट ऑन सेम प्लेन या 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट इन सेम प्लेन, दैट इज अ इक्विटोरियल, दैट बॉन्ड इज इक्विटोरियल bonds, okay, and one bond present above and one bond present below the equatorial plane are equatorial bond। ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल प्लेन बोलेंगे। एंड वन बॉन्ड प्रेजेंट above एंड वन बॉन्ड प्रेजेंट बिलो द इक्विटोरियल प्लेन, है ना। और ये बॉन्ड जो होते हैं जो इक्विटोरियल पे है दोनों, उनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का, और दोज बॉन्ड विच इज प्रेजेंट ऑन इक्विटोरियल प्लेन, उनका जो बॉन्ड एंगल होगा वह होगा 120 डिग्री का। इट मीन्स देयर इज अ 2 टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। व्हाई? बिकॉज ऑल 5 p bond Cl are not equal, okay, 3 bond present on equatorial bond, तो 3 bond contain 120 degree and 1 bond present above and 1 bond present below the equatorial plane and make 90 degree क्या बॉन्ड एंगल। समझ में आया? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 5 बॉन्ड पेयर्स होंगे, 1 2 3 4 5, नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कोई लोन पेयर नहीं होगा, ओनली 5 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स का शेप जो होगा वह कैसा होगा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, यहां पर लिख देते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ओके, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ये हमारा क्या हो गया, ट्राइगोनल एक पिरामिड की तरह ऊपर है और एक पिरामिड की तरह नीचे है, तो 1 and 1 कितना हो गया, 2 को क्या बोलते हैं, बाई, इसको हम क्या कहेंगे, बाई पिरामिडल। तो शेप ऑफ AB 5 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल एंड बॉन्ड एंगल इसका कितना होगा, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री का। ओके, एंड अदर एग्जांपल्स ऑफ AB 5 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज PF5 फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड एंड SbCl5 etc। दीज मॉलिक्यूल्स एकदम सिमिलर है किसकी तरह, PCl5 मॉलिक्यूल्स की तरह। तो दीज मॉलिक्यूल्स कंटेन शेप लाइक एस ट्राइगोनल बाईपिरामिडल एंड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, AB 6 type of molecules, for example SF6, SF, S is the A and F6 is the B6। तो S is the central atom, atomic number 16 286। It means sulfur valence shell has 6 electron. How many electrons? 6 electron, and there is 6 fluorine atom. How many fluorine atom? 6 fluorine atoms। okay, 2 2 4 2 6 1 7, 2 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2
24261 7 224 261 7 224 261 7 224 261 7 718 718 and 718 and 718 and 718 and 718. Okay, sulfur also share one electron with each फ्लोरीन ठीक है। तो शेप कैसा आएगा इसका, S बॉन्ड F बॉन्ड F बॉन्ड F बॉन्ड F एंड बॉन्ड F। ओके, यहां पे F एंड यहां पे F। ओके, ऑल 6 बॉन्ड पेयर्स या ऑल 6 बॉन्ड प्रेजेंट ऑन सेम प्लेन, सभी किस पे होंगे, सेम प्लेन पे होंगे। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा इनका, स्ट्रक्चर इनका शेप होगा ऑक्टा हेड्रल एंड बॉन्ड एंगल सबका कितना होगा 90 डिग्री, सबका 90 डिग्री। वाई, बिकॉज ऑल बॉन्ड्स प्रेजेंट ऑन सेम प्लेन। ओके, तो शेप ऑफ AB6 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑक्टाहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। अदर एग्जांपल TeF6 and SeF6. Okay, these are example of AB6 type of molecules and these molecules contain shape octahedral and bond angle 90 degree. AB7 type of molecule, AB7 type of molecules, for example IF7, ओके। तो I एटॉमिक नंबर 53, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 18 7 18 18 36 and 10 46 and 7 53. It means there is a 7 valence electron, 7 valence electron। तो I है IF7, 7 फ्लोरीन अटैच टू द सेंट्रल एटम या अटैच टू द आयोडीन एटम और देयर इज ए 7 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनका मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं क्योंकि आप लोग तो ओवरलैप करके आप लोग बना लेंगे स्ट्रक्चर, सीधे मैं बना रहा हूं कि इनका स्ट्रक्चर होता कैसा है आफ्टर रिपल्सन के बाद इनका जो मेन स्ट्रक्चर आता है, क्योंकि देयर इज ए 7 बॉन्ड पेयर होंगे, देयर इज ए 7 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, सभी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सब पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। ओके, अगर सिमिलर होगा तो ज्योमेट्री भी उसकी क्या होगी, रेगुलर होगी। आज हम ऐसे मॉलिक्यूल्स का शेप जान रहे हैं जिनके पास केवल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स है और कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि शेप ऑफ सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कंटेन लोन पे इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स। आज हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल का शेप पढ़ रहे हैं जो केवल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करते हैं, लोन पे इलेक्ट्रॉन को कंटेन नहीं करते हैं। ओके, तो इनका जो शेप होगा F F F F एंड F। ओके, तो यहां पे बॉन्ड आएगा, बॉन्ड और यहां पे बॉन्ड, यहां पे बॉन्ड, यहां पे बॉन्ड, ऐसे बनेगा। ये आफ्टर रिपल्सन है, ठीक है, आफ्टर रिपल्सन। तो 5 बॉन्ड्स प्रेजेंट, 5 बॉन्ड्स जो होंगे, 5 बॉन्ड्स मतलब 1 2 3 4 5 I बॉन्ड F प्रेजेंट ऑन सेम प्लेन, सभी क्या होंगे, सेम प्लेन पे होंगे और इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वह 72 डिग्री का होगा। इन सब का बॉन्ड एंगल 72 डिग्री का। बट देयर इज ए 7 फ्लोरीन और जो 2 फ्लोरीन्स होंगे वह कहाँ पे होंगे, हमारे परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर विथ ईच अदर। एक F यहाँ पे और एक F यहाँ पे। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, शेप ऑफ
AB 7 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनका शेप होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ओके, तो 5 ऑल 5 या कह सकते हैं कि इसमें जो 5 आई बॉन्ड F हैं वह सेम प्लेन पे होंगे। पेंटागोनल जिसे हम क्या कहेंगे, पेंटागोनल, उनका बॉन्ड एंगल कितना होगा 72 डिग्री। एंड जो बाई पिरामिडल है मतलब बोथ बॉन्ड्स विच इज परपेंडिकुलर विथ ईच अदर, इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वह कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। मतलब देयर इज ए 2 टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, क्लियर। तो आज हमने ऐसे मॉलिक्यूल के शेप के बारे में जाना जो ओनली बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को कंटेन करते हैं, लोन पे इलेक्ट्रॉन को कंटेन नहीं करते। AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे उन सब का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री एंड शेप लीनियर। AB3 टाइप के जो होंगे उनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड शेप ट्राइगोनल प्लेनर। AB4 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। एंड AB5 टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे उनका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड बाई पिरामिडल का 90 डिग्री। ओके, एंड AB6 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो शेप होगा वह ऑक्टाहेड्रल होगा एंड बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। व्हाई? बिकॉज ऑल बॉन्ड्स प्रेजेंट सेम प्लेन। ओके, एंड जो AB7 टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, AB7 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। व्हाई? बिकॉज 5 बॉन्ड्स प्रेजेंट ऑन सेम प्लेन एंड 2 बॉन्ड्स इज परपेंडिकुलर या 2 बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर विथ ईच अदर। जो 5 बॉन्ड्स हैं बॉन्ड एंगल 72 डिग्री एंड जो परपेंडिकुलर है 2 बॉन्ड्स उनका 90 डिग्री। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस shape of such type of molecule which contain lone pair and bond pair electron. Okay, so enjoy with chemistry. Thank you.